children? How are you all? Fine. Here we are with the new session, the next one of chapter 14, statistics. Which session is this? Eighth session. Alright, in the previous two sessions, we saw two different types of graphs. Alright, the first one was actually revision of bar graph या column graph, and the second one was histogram. Alright, in our chapter for standard 9, we are going to learn three types of graph, and here is the third one. Okay, so let's see how to draw this graph. We'll read the question. You close your books. What you are turning the pages and looking at? You pay attention here. Chalo. Prepare frequency polygon. Which graph? Frequency polygon. This graph is called frequency polygon. For the following data. In my first session, I think, basic session, उसमें मैंने तीनों ग्राफ के बारे में बताया है. Why it's called polygon, right? चलिए. Here is the data. You are given classes in form of marks. Marks scored from 0 to 10. How many students? 5. ये अपनी frequency भी है. So नीचे हमें total जो करते हैं तो सिग्मा F1 12 14 16 26 36 46 and 5 51. Also called number of. Alright, if we have to draw the graph, we need two quantities. One quantity we are going to represent on x-axis and the other one on y-axis. On y-axis the quantity should be dependent. On y-axis it should be dependent. And on x-axis independent. So number of students depend on marks, या marks depends on number of students? Right? कैसे marks आए? ऐसा नहीं है कि यहाँ 100 स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो रिजल्ट बुरा आएगा और 10 स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा. पढ़ाना तो सेम है. Are you getting me? Yes. So students depend on. So what you are going to take on y-axis? And what you are going to take on x-axis? No. इतना ध्यान रखना. Last bench boy, please, I have started the work. How can you keep on writing something? I don't understand, बेटा. मैं समझ नहीं पड़ती तो मैं लोग को सुन करो छो. Here I just now told close the books. Please be attentive. If you are not attentive, what's going to enter your head? Chalo. Now see. I said no. For frequency polygon, we don't take frequency. We don't take class. We don't take class. Frequency तो independent, dependent variable है, dependent quantity. So y-axis पे तो same रहने वाला है. On y-axis we always take dependent. और जो independent है वो marks है, classes है यहाँ. But here we are not going to take class. We are going to take mid values. What we are going to take? Mid values. Mid value of each class. लेकिन in your book the term is class mark. Mid value शब्द नहीं वापरियो. कयो शब्द वापरियो छे? Class mark. So if you don't want this, we don't need it. We want class mark of each class. So I'll have to create that. So here in the next column I am putting class mark. Class mark. Do you remember how we find the mid value? Yeah, class mark. Lower limit plus upper limit divided by 2. Lower limit class mark is equal to lower limit plus upper limit divided by 2. Boliye, 0 is the lower limit, upper limit is 10 divided by 2, 10 divided by 2, and that is 5. So class mark of the first class is 5. Second class, 10 plus 20 divided by 2, 30 divided by 2, that is 50. So second class का class mark है 50. Third, 20 plus 30 divided by 2,
हाँ 50 upon 2 is 25. 50 by 2 and that is 25. फिर 30 plus 40 70 70 डिवाइड बाई 2 30 चल रहा है। ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ओनली द फर्स्ट वन एंड सेकंड वन यू हैव टू कैलकुलेट, आफ्टर दैट यू कैन राइट डायरेक्टली। क्यों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच क्लास? अपर लिमिट का 10 का है ना, तो सेंट्रल वैल्यू, मिड वैल्यू और जिसे हम कहते हैं क्लास मार्क, वो सेम ही आएगा 10 10 का गैप। ये 0 प्लस 10 10 10 डिवाइड बाई 2 5, फिर आप 10 ऐड करते जाओ, पर पहले चेक कर लो थ्रू आउट 10 है क्या, ये चेक करना जरूरी है। यहाँ 20 का होगा तो यहाँ भी पहले 20 का होगा डिफरेंस, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दो क्लास मार्क ढूंढिए। 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाई 2 50, so 5 का डिफरेंस 10 का डिफरेंस। बोलो 15 प्लस 10 25 प्लस 10 35 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। एक काम करते हैं कंफर्म करने के लिए, लास्ट वन का टोटल कर देते हैं। 90 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, 190 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 9 जा, एक बचा 2 5 जा। यस, सो नथिंग रॉन्ग। એટલે કોઈ પર આ મિસ કરી ગયા હોય ને તો અહીંયા પકડાઈ જાય। આર યુ ગેટિંગ મી? ઓકે, એટલે લાસ્ટ વન ચેક કરી લેવા કરવું હોય તો, if you want to make sure that you haven't made mistake, તમારે ખાતરી કરવી હોય કે ભૂલ કરી જ નથી, પણ છેલ્લાનું પણ ચેક કરી લેવાનું। જો બરાબર આવ્યું તો સમજવાનું કે કોઈ ભૂલ વચ્ચે નથી। સ્ટાર્ટ किया? हो गया? मुझे ये नहीं लेना है, मुझे ये लेना है, तो यहां होगा क्लास मार्क। लेकिन हम लिखेंगे तो यही 0, तो ये 0, फिर 10 100 तक चाहिए 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। यहां लिखेंगे क्लास मार्क, क्लास मार्क। ऑलराइट, चलिए यहां मैक्सिमम वैल्यू क्या है वाई एक्सिस पे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम वाई एक्सिस पे डालने वाले हैं 10 है मैक्सिमम, सो 1 सेंटीमीटर ले, 2 भी ले सकते हैं। आई एम टेकिंग 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। डन? अभी एक चीज चाहिए मुझे, वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक्स्ट्रा मैं डालूंगा लास्ट वन के बाद और फर्स्ट वन से पहले। इसमें 10 ऐड करो, 105। भाई ऊपर वाला चाहिए तो 10 माइनस करो, 85 से 10 माइनस करो 75 से 10 माइनस करो 65, 5 में से 10 माइनस करो -5 है ना, तो माइनस भी चाहिए, तो ये -10 होगा और ये -20 होगा ये साइड से एक्स एक्सिस। प्लीज रिमेंबर, क्लास मार्क सबसे छोटे से पहले और सबसे बड़े के बाद, ये दो एक एक्स्ट्रा लेना है। क्यों? उसका राज मैं बताता हूं आपको। I'll tell you its secret why we are doing that. Check. We start with this. बोलो, what is the class? Oh yes, क्लास मार्क कहाँ है? हमने तो क्लासेस ले ली, तो एग्जैक्टली सेंटर में 5 यहां आएगा, 15 यहां आएगा, एग्जैक्टली बीच में, डिविजन्स के बीच में। अभी ये ऐसे लाइन होने वाली है चिल्ड्रन, ऐसे ऐसे आपके पास, तो ये आपका 10 है, ये आपका 20 है, 5 डिविजन होंगे ना ग्राफ पेपर में, तो यहां से 2 यहां से 2 और एग्जैक्टली इसके बीच। समझ में आया क्या? Did you understand? So where will be 15? यहां एग्जैक्टली बीच, 25 बीच में, उसकी लाइन नहीं होगी, 2 लाइन के बीच आने वाला है पॉइंट। डू यू अंडरस्टैंड? उसको समझ में आ जाएगा। चलिए आई स्टार्ट। क्लास मार्क 5,
तो यहाँ बीच में चलेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 वाली लाइन मिलेगी आपको, है ना ऐसे, और यहाँ 5 है ना, 5 एग्जैक्टली बीच में दिस पॉइंट मिला। फिर सिर्फ पॉइंट ड्रॉ करना है, बोलिए। ये ले लो पहले 10 वाली लाइन ये होगी, मैं हल्का सा लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और 15 10 और 20 के बीच जाएगा यहाँ। आर यू गेटिंग मी? 10 15 देन 4 वाली लाइन ये जाएगी, और हमें चाहिए 25 20 और 30 के बीच लाइन नहीं होगी, लेकिन यहां दो लाइन के बीच एग्जैक्टली आप रख सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? दिस पॉइंट। फिर 6 वाली लाइन कहीं यही होगी, और दैट 35 30 और 40 के बीच लाइन नहीं होगी, दो लाइन के बीच चलना होगा ये, ऑलराइट। ये रिमूव दिस, आ लाइन तो तुम्हारे ड्रॉ नहीं करनी पड़ती, तो क्वेश्चन। देन 7, सो दिस विल बी योर लाइन, 7 वाली लाइन कुछ ऐसी जाएगी, और सामने क्लास मार्क 45 40 और 50 के बीच होगा, ये क्लास मार्क है। या समझ में आई बात? डिड यू अंडरस्टैंड? उसके बाद 3 वाली लाइन ये कुछ जाएगी, और क्लास मार्क 50 और 60 के बीच समवेयर हियर, ऑलराइट। चलिए इसको मैं निकाल देता हूं, दिस वन। फिर 2 वाली लाइन ये होगी, ये भी 265 यहां, और 75 वाला भी 2 70 और 80 के बीच। समझ में आया क्या आपको? डिड यू अंडरस्टैंड? फिर 3 अगेन, सो गो अप 3 यहां, 3 वाली लाइन ये जाएगी, है ना, और 80 और उसके बीच यहां कुछ आए, समझ लो जरा। चलिए फिर 95 9 वाली लाइन तो यहां है, और 95 एग्जैक्टली 90 और 100 के बीच ये लाइन। आर यू गेटिंग मी? हो गया? ओके। अब मुझे रूलर से ही काम करना है, ये दैट पैड या रूलर है लंबी वाली? ओके, दैट रूलर इज, यू हैव टू वर्क विथ रूलर। व्हाट वाज द फर्स्ट मार्क? ये ना, ये सेकंड मार्क ये, जॉइन देम बाय मींस ऑफ लाइन सेगमेंट। सेकंड पॉइंट थर्ड से जोड़, थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ पॉइंट को फिफ्थ को, so you have to join those points in order with the help of line segment. Next 2 points, next 2 points, next 2 points, and now this is the last one, right? लाइन सेगमेंट, कितनी लाइन सेगमेंट होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉलीगॉन ये तो क्लोज ही नहीं हुआ, पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर, है ना, पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर। इसलिए हम क्या करते हैं, लास्ट वन क्या लिया था, पहला वाला क्या लिया था, उसके आगे तो 0 इसके बीच आएगा यहां, समझ में आया? लास्ट वन यहां क्या लिया था, 95, उसके बाद तो वो उसके बाद 105 लेना है। और अब हम क्लोज करेंगे इसको, इसके साथ ब्लू पॉइंट ही यूज कर लेता हूं, और this one with this, ठीक है? और ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट तो है ही बड़ा वाला, है ना, ये बड़ा वाला है ही ना, तो ये 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 line segment forms closed figure and that is polygon. So this graph is called frequency polygon. तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना होगा. एक क्लास मार्क सबसे छोटे से पहले, एक क्लास मार्क सबसे बड़े से आगे. नेक्स्ट उसको भी ज्वाइन करना है, प्लॉट करना. ये सारे पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे और वो दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएंगे. यू अंडरस्टैंड? क्योंकि उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 है, उसका तो है ही नहीं. इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, 0 ही समझेंगे. इसका भी नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 ही समझेंगे. सो दैट विल बी ऑन द एक्स एक्सिस. सो अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? श्योर? We'll see one more. All right. All right, children. The previous one I wrote only illustration. Actually, that was illustration number 8. So next, from the textbook, we have illustration 9 to solve. And here is the statement. In a city, the weekly observations made in the study on the cost of living index are given in the following table. Prepare frequency polygon. I don't know whether you know about cost of living index. Here, the first column, it's given cost of living, and a second column, number of weeks. Now try to understand. Briefly, I'll explain. Okay? 140 to 150. That many rupees you need to survive one day. पूरा दिन का खाना आपका चलना चाहिए. सिर्फ खाना नहीं, कपड़े लत्ता सब्जी जो भी आ जाता है. मीन्स आपको जीने के लिए द बेसिक नेसेसिटीज आपको 140 to 150 रुपीज में हो जाता है. दैट इज योर कॉस्ट ऑफ लिविंग. आर यू गेटिंग? बेसिकली वी नीड फूड. कपड़े हर रोज नहीं चाहिए. यू अंडरस्टैंड? लेकिन उसका भी कॉस्ट पर डे आ जाता है. तो ये वीकली है. 5 वीक्स तक कॉस्ट ऑफ लिविंग 140 to 150 इतना रहा. इतने में चल जाएगा. 1 person 1 head कैन सर्वाइव. एक सर जी सकता है आराम से इतना पैसे से. राइट? यू नो, पेट्रोल डीजल फ्यूल प्राइसेस आर राइजिंग डे बाय डे. Vegetables were very costly when it rained heavily. तो cost of living increases. है ना? एक वीक अभी हमारा cost of living बढ़ रहा है because of rise in prices of all articles. बहुत कुछ महंगाई आने वाली है 2022 में, वो बता रहे हैं. Are you getting me? So cost of living is going to move up. ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, पगार बढ़नी होगी. तो what I'm trying to say, 10 वीक्स तक वो 150 to 160 रहा, बढ़ गया कॉस्ट ऑफ लिविंग. 160 to 170 20 वीक्स तक रहा, 170 to 180 9 वीक्स. फिर आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ लिविंग. बढ़ते ही गया, वो तो बढ़ते ही जाएगा. जैसे वो कॉस्ट ऑफ लिविंग कभी कम नहीं होगा, है ना? कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ना. शायद विंटर में कॉस्ट ऑफ लिविंग खाने का कुछ कम होगा बिकॉज यू विल हैव लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड इट विल बी चीपर एज वेल. प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स और थोड़ा सस्ता भी होगा. ऑलराइट? टमेटोज रिसेंटली इट वाज 60 रुपीज केजी, जो बारिश के पहले कुछ 10 दिन पहले 20 रुपीज केजी था. सडनली इट बिकेम 60 रुपीज केजी. और अच्छे वाले लेने जाओ तो 80 रुपीज केजी भी मिले. आर यू गेटिंग मी? सो तो जितना टाइम टमेटोज महंगा रहेगा, 1 वीक 2 वीक, तो उतना टाइम हमारा पैसा ज्यादा जाने वाला है. ऑलराइट? अच्छा, हम ये करते हैं हमारा सेटलमेंट करने के लिए कि कुछ दिन टमेटोज बंद, और क्या है ना? Those who can afford will buy, those who cannot afford they will not buy because they do not have money. Alright? इनकम इतनी होगी, इनकम नहीं बढ़ी, तो उसको ऐसे एडजस्ट करना होगा. So I'm just trying to explain to you what is cost of living. इसलिए कुछ ज्यादा बता रहा हूं. Alright? Understood what is cost of living? और यहाँ number of weeks. So
For 5x, the cost of living was retained from 140 to 150 rupees. Alright, ठीक है. ये रुपीस भी नहीं होगा, ये इंडेक्स है, कैलकुलेशन है फॉर्मूला से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बताया गया है. ऑलराइट, ठीक है. चलिए, prepare frequency, which is the dependent quantity. वही तो फ्रीक्वेंसी है ना? So that will be on y axis. x axis पे यदि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना हो तो क्लासेस नहीं लेना है. क्या लेना है? क्लास मान. क्लास मान. ये दोनों का टोटल कीजिए. 140 प्लस 150. 290. Yes, divide by 2. 290 divide by 2. 2 ones are 2 fours are 5. So 145. All right. Now the gap is of 10, 10, 10. है ना? 10 का अंतर है ना? So add 10. 155. Add 10. Add 10. Add 10. Add 10. But to just confirm everything went on correctly, हम last one 190 plus 200 divide by 2, 390 divide by 2, 2 ones are 2 nines are 2 5s are 195. ठीक है. अब भूलना नहीं, हम क्या कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. तो इसके बाद 10 ऐड करो 205. उसके पहले 10 सब्ट्रैक्ट करो. हाँ, सो वहां से शुरू करना पड़ेगा. तो ये क्लास भी एक आगे लेना पड़ेगा. वो भी लिया था ना उसमें -10 to 0 उस तरफ. तो ये तो पॉजिटिव ही है. तो एक क्लास आगे लेंगे तो 132 150 132 150. 132 140. समझ में आई बात? तो now I'll draw quickly. Please pay attention. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. We did not write the scale in the previous one. Be careful. उसका मार्क जाएगा. मेरा भी मार्क कट हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं. हाँ, ओके. चलिए, नाउ सी. ओके, 130 से शुरू करेंगे. कहां से शुरू करेंगे? 130 140 150 चिल्ड्रन, कभी किसी को दिमाग में ये नहीं आता है, सर वो क्यों लिख रहे हैं क्लास? हम यही लिखेंगे. 135 से मैं शुरू करूंगा. 135 140 150 160 170 180 190 200 200. These are क्लास. सर आप क्लास मार्क लिख रहे और अभी सही दिख रहा है कि ये सब क्लास मार्क्स है. इफ यू वांट यू कैन डू दिस आल्सो. तो वो बीच वाला प्रॉब्लम निकल जाएगा, लेकिन मैं बाद में बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है. सुनो, किंग आएगा नहीं. सुनो, अब वो चेक करना है ना. बोलिए. 175 माइनस 165 165 minus 155 155 minus 145 145 minus 135 135 minus 0 135. ये तो पूरा बंडल डप है, उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. सो यहाँ हमको किंग ड्रॉ करना है. ऑलराइट, गॉट इट? अब ये हाईएस्ट 20 है, सो 1 ले सकते हैं. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. चलिए 135 जीरो है तो वो तो यहां ही आएगा, है ना? 5 और 145, ये 145 वाला अच्छा सा लाइन मिल जाएगा मुझे, दोनों लाइन मिलेंगे, है ना? चलिए फिर 155 और 10, 155 वाली लाइन जाने दो, 10 आता है, 165 वाली लाइन जाने दो, 20 तक, फिर 175 वाली लाइन जाने दो, 9 तक, हाँ? फिर 185 वाली लाइन को जाने दो, 6 तक, 195 वाली लाइन जाने दो, 2 तक, और 205 वो वही होगा, राइट? एंड देन स्टार्ट कनेक्टिंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, लाइन ड्रॉ करो, ठीक है? हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? हो गया? Correct, nothing wrong. I didn't take classes. You understand? So if you have to draw only frequency polygon, you can straight away take class mark. But you have to draw frequency polygon and histogram of the same data on the same page, on the same graph paper. तभी ये क्लासेस बहुत जरूरी है, क्योंकि हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए? क्लासेस, और पॉलीगॉन के लिए क्या चाहिए? तो क्लासेस लिखेंगे तो पॉलीगॉन के लिए जो क्लास मार्क चाहिए वो एग्जैक्टली बीच में मिल जाएगा. डू अंडरस्टैंड? सो दोनों मिल जाएंगे. आर यू गेटिंग मी? तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्क, आप जब पॉलीगॉन भी ड्रॉ कर रहे तो क्लासेस ही ले लो. हमें लेना है क्लास मार्क, इसलिए एक कॉलम बना भी दिया है. सो व्हाइल टेकिंग तो एग्जैक्ट बीच में ले लेना है पॉइंट व्हेन यू हैव टेकन क्लास. बट दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एज वेल. आई होप you understood. Yes. Not confused, no? Yes. All right. So that's all that we have in this session. All right. In the next session, we will see two graphs, in which on the same graph paper you have to draw histogram and frequency. All right. Once again, I remind you, frequency polygon में ये भी चलेगा. Yes, scale, scale बच गया है. यहाँ भी भूल जाते थे. Scale. X axis, Y axis. 1 centimeter equal to, दोनों पे 1 centimeter ही लिया. 1 centimeter is 10 units. 1 centimeter Is equal to 10. Sir, x-axis का Okay. Yeah. 10 units. और y axis पे तो 1 centimeter is 1 big. ये big है, bits है. Frequency में bits है ना? So 1 big. 1 big. Yes. बेटा तू कुछ बता रहा था? Okay, fine. Alright. So that's all. See you in the next session. Till then, goodbye. Have a nice day.